کہنے والوں نے کہا کہ اگر بڑی بڑی خینچیوں کو بنایا جائے، تیز دھاری دار خینچیاں، اس خینچی سے انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، انسان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، انسان کے پیر کو کاٹ دیا جائے، انسان کے کان کو کاٹ دیا جائے، انسان کی ناک کو کاٹ دیا جائے، انسان کے ہونٹ کو کاٹ دیا جائے، انسان کی زبان کو کاٹ دیا جائے، سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو انسان کو وہ کاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ میں موقع دیکھتے تھے، تربیت کا موقع دیکھتے تھے، کچھ نصیحت کا موقع دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موت کی یاد دلاتے تھے، کثرت کے ساتھ موت کی یاد دلاتے تھے، بار بار موت کی یاد دلاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کے اندر موت کو زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے موت سے نفرت ان کے دلوں میں نہیں تھی، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ وہ اپنے سر پر کفن کو باندھ کر میدانوں میں نکل جاتے تھے، لیکن آج ہم نے جو موت کو بھلا دیا ہے، آج اتنی اموات ہماری نگاہوں کے سامنے ہونے کے باوجود، یہ عبرت کا سامان ہونے کے باوجود آج جو ہم نے موت کی فکر نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہے، آج ہمارے اندر موت سے نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ موت کو یاد کیجئے، کیونکہ موت وہ لمحہ ہے، موت جب کسی انسان کی آتی ہے تو اس کو جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس شدت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، آئیے چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگر اس دنیا میں ایک بہت بڑی آگ کو لگا دیا جائے اور اس بڑی آگ پر ایک بڑی ہانڈی کو چڑھا دیا جائے، اس ہانڈی میں پانی کو ڈال دیا جائے، اس آگ پر اس ہانڈی کے پانی کو گرم کیا جائے، پانی کھٹکھٹا رہا ہو، پانی ابل رہا ہو، پانی جوش مار رہا ہو، اس جوش مارنے والے پانی میں اگر کسی انسان کو اٹھا کر ڈال دیا جائے تو انسان کو اس گرم پانی میں جو تکلیف ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوگی۔ محسوس کیجئے، سننا اور سنانا تو کوئی بات نہیں ہے، محسوس کیجئے اگر ہمیں اس ہانڈی میں ڈال دیا جائے جو پانی کھٹکھٹا رہا ہو، کیا حالت انسان کی اس وقت ہوگی۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگر بڑی بڑی خینچیوں کو بنایا جائے، تیز دھاری دار خینچیاں، اس خینچی سے انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، انسان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، انسان کے پیر کو کاٹ دیا جائے، انسان کے کان کو کاٹ دیا جائے، انسان کی ناک کو کاٹ دیا جائے، انسان کے ہونٹ کو کاٹ دیا جائے، انسان کی زبان کو کاٹ دیا جائے، سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو انسان کو وہ کاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، اسلاف نے کہا اگر کسی بڑے آرے کو بنا دیا جائے، اس بڑے آرے کو انسان کے سر پر رکھ کر، سر سے لے کر پیر تک انسان کو اس آرے سے چیر دیا جائے، انسان کو پھاڑ دیا جائے، دو ٹکڑے اس کے کر دیے جائیں، تو اس چیرنے کی وجہ سے انسان کو جو تکلیف ہوگی، اس سے کئی زیادہ تکلیف انسان کو اس کی موت کے وقت ہوگی۔ ترازو کے دو بڑے پلڑے، ایک پلڑے میں دنیا کی ساری مصیبتوں کو رکھ دیا جائے، دنیا کی ساری پریشانیوں کو رکھ دیا جائے، ساری تکلیفوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں موت کے وقت ہونے والی تکلیف کو رکھ دیا جائے، تو محدثین نے کہا، صحابہ نے کہا، ائمہ نے کہا کہ موت کی تکلیف کے سامنے
दुनिया की सारी तकलीफ़ें मामूली नज़र आएंगी। मौत की क्या तकलीफ़ होती है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के बारे में बताया जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे, मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो मरने के वक्त में बात कर सकते हैं लेकिन फिर भी मौत की तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकते। मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो मरने के वक्त की तकलीफ़ को लोगों के सामने नहीं सुना सकते, लेकिन जब अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की मौत का वक्त आया, जब वो खुद मर्जुल मौत में मुब्तला हुए, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उनको उनकी बात याद दिलाई और कहा, अय अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, आप अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि आपको ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो मौत की तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकते। आज आप खुद मौत से दो चार हैं, आज आपकी खुद की मौत का वक्त आ गया है। आप खुद बता दीजिए मौत के वक्त क्या तकलीफ़ होती है, मौत के वक्त क्या परेशानी होती है, मौत के वक्त क्या शिद्दत होती है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मौत की शिद्दत नाकाबिल बयान है, मौत की शिद्दत नाकाबिल बयान है। मैं बस इतना बता सकता हूँ, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरे पेट में खजूर के कांटे भर दिए गए हों, मेरी गर्दन पर कोई भारी पहाड़ रख दिया गया हो और मेरी सांस सुई के सुराख से गुजर रही हो। मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मैं बस इतना बता सकता हूँ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त जो अगर हम देखेंगे, वो लम्हात को अगर हम याद करेंगे तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुखारी की हदीस में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त था, अल्लाह के रसूल प्यारे हबीब मेरे गोद में हैं, मेरी ठूड़ी और छाती के दरमियान में टेक लगाए हुए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तकलीफ थी कि आप कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी चलते हैं, कभी फिरते हैं, कभी बैठते हैं और कभी लेट जाते हैं। आपके सरहाने पानी का एक बर्तन रखा हुआ था, पानी के उस बर्तन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को डालते हैं, अपने चेहरे पर पानी को मलते हैं, अपने हाथ को डालते हैं, अपने चेहरे पर मलते हैं और कहते जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति ला सकरात। अल्लाह की कसम, मौत की बड़ी सख्तियाँ हैं, मौत की बड़ी सख्तियाँ हैं। गौर कीजिए, ये किस हस्ती की मौत का लम्हा था। ये प्यारे हबीब की मौत का वक्त था, ये इमामुल अंबिया की मौत का वक्त था, ये सारे लोगों के सरदार, कायनात के जो लोग हैं उन लोगों के सरदार की मौत का वक्त था। लेकिन जब आपकी मौत का वक्त आता है तो आपकी ये हालत है, जब मेरी और आपकी मौत का वक्त आएगा तो हमारी क्या हालत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम अनिल खता थे, आप नबी थे, आप रसूल थे, अल्लाह के चहेते थे, अल्लाह के महबूब थे, लेकिन आज हम सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। अल्लाह की कसम, आज हमारा कोई दिन गुनाह के बगैर नहीं गुजरता। जानबूझकर भी हम गुनाह कर रहे हैं, अनजाने में भी हमसे गुनाह हो रहे हैं, छोटे गुनाह भी हमसे हो रहे हैं, बड़े गुनाह भी हमसे हो रहे हैं। सर से लेकर पैर तक आज हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। कितने गुनाह, गुनाहों की फहरिस्त हमारे सामने है। नमाजों को छोड़ने का गुनाह, रोज़ों को ना रखने का गुनाह, गीबतें करने का गुनाह, चुगलियाँ करने का गुनाह, एक दूसरे के दिलों को दुखाने का गुनाह, चबूतरों पर बैठकर बेकार का, सीढ़ियों पर बैठकर, बाजारों में बैठकर ठीठी ठाठा और मजाक करने का गुनाह, अपनी बुरी नज़र का गुनाह। ये सारे गुनाह, इतने गुनाहों के बावजूद आज हम समझते हैं कि मौत हमारे ऊपर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। हरगिज़ नहीं। अगर हमने मरने से पहले पहले अपने आप को नहीं सुधारा,
अगर हमने गुनाहों को इस दुनिया में नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी में इस सांस के रहते हुए अल्लाह के सामने तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं किया, तो याद रख लीजिए मौत का लम्हा बहुत ही सख्त लम्हा है, बहुत ही तकलीफ देने वाला लम्हा है। अफसोस होता है आज लोगों पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत बताई गई, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि प्यारे हबीब मेरी गोद में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ जब मैंने देखा, आपकी तकलीफ को देखने के बाद मैं किसी की भी मौत की तकलीफ को बड़ा नहीं समझती, यानी मैं किसी भी मौत की तकलीफ को बड़ा नहीं समझती, उतनी ज़्यादा तकलीफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर मौत के वक्त हो रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि आप एक मरतबा मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। सहाबा को रसूल अकरम ने देखा, सहाबा मस्जिद के एक कोने में ठहर कर किसी बात पर मजाक कर रहे हैं, किसी बात पर हंस रहे हैं। सहाबा को हंसता हुआ देखकर रसूल अकरम ने सहाबा को बुलाया और कहा, ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी मौत को याद करो, तुम अपनी मौत को याद करो, तुम हंसना बंद कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मौत और ख़बर को याद करो। क्यों? इसलिए कि ख़बर पर कोई भी दिन ऐसा नहीं गुज़रता, ख़बर पर कोई भी दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिस दिन ख़बर ये पुकार पुकार कर ना कह रही हो, ऐ गाफिल इंसान, मैं तो मिट्टी का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं दहशत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। आज तेरे पास नरम और गरम बिछोना है, नरम और गरम बिस्तर है जिस पर तू सो रहा है, लेकिन याद रख तुझे वो नरम और गरम बिस्तर छोड़कर मेरी इस काली कोठरी में, मेरी मिट्टी में तुझे आना है। आज तेरे पास हवा के लिए सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, आराम के लिए सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें छोड़कर, अपने दोस्त व अहबाब को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मेरे पास तुझे एक दिन आना है। मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। रोज़ाना ख़बर इंसान को पुकार पुकार कर ये कहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया।